Okay students, welcome to CATG online classes. Today is lecture number 34, Relations and Functions. तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग सम फंक्शनल रिलेशंस एंड रिलेटेड फंक्शंस. तो इसमें दिया गया if f is a continuous function, if f is a continuous function and satisfies the functional equation f of x plus y equal to f of x plus f of y for all real x and y, okay, then prove that f of x equal to x into f of 1 for all x belongs to R. देखिए ये जो हमें दिया गया, इसमें कहा गया f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. करेक्ट. कंटिन्यूअस फंक्शन का बारे में हम लोग बात आगे करेंगे और इसका हम यहाँ कुछ यूज़ करेंगे आगे बढ़कर. क्या यूज़ करेंगे जब आएगा तब बताएंगे आपको, बात करेंगे हम लोग. बेसिकली कहा गया f of x plus y equal to f of x plus f of y for all real x and y. Let us try to understand इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. जैसे अगर मैं कहता हूँ f of 10 को मैं कह सकता हूँ f of 1 plus 9, है ना. 10 कहिए, 1 plus 9 कहिए, बिकॉज इट इज f of x plus f of y. तो आप इसको कहोगे f of 1 plus f of 9. मैं 10 को 2 plus 8 भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ f of 2 plus f of 8. In fact, I may write f of 10 को as f of 30 plus minus 20, because इसमें कहा गया this statement is true for all real x and y. Not necessarily x and y both are positive. तो आप इसको कह सकते हो f30 plus f minus 20. अगर मैं कहता हूँ इसको I may say 10 plus 3 root 2 plus minus 3 root 2. f of 10 कहिए, f of x plus y is f of x plus f of y. मीन्स f एक ऐसा फंक्शन है जो कि ये सारे मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. मीन्स f of 10 का वैल्यू वही आएगा जो f1 प्लस f9 का सम आएगा, f2 प्लस f8 का सम आएगा, f of 10 प्लस 3 रूट 3, f of माइनस 3 रूट 3 का सम आएगा. ये सब के सब f of 10 का बराबर आ रहे होंगे. एनी हाउ लेट अस गो अहेड नाउ. तो हमें प्रूव करना है f of x इंटू f of 1. करेक्ट. देखिए नाउ टू प्रूव इट, देखिए नंबर 1 पॉइंट हम कहते हैं अगर मैं x की जगह 0 और y की जगह 0 रखता हूँ, आई गेट दिस, और आई गेट f of 0 इक्वल टू twice of f0 implies f0 equal to 0. ओके. तो दूसरी बात क्या है, ऑल्सो अगर मैं y की जगह रखता हूं माइनस एक्स, आई गेट f of x plus f of minus x. This implies f of 0 f of 0 is 0.
f of minus x is minus fx, correct? f of minus x is minus of fx. so एक तो हमें मिला f0 0 मिला, ओके हमने x और y दोनों को 0 पुट किया और y की जगह हमने रखा माइनस x, बिकॉज वेन एवर x इज रियल माइनस x इज ऑल्सो रियल. तो we get f of minus x equal minus of fx means f is an odd function, करेक्ट. ये हमारा इनिशियल कंक्लूजन है. दूसरी बात क्या है, अगर मैं कहता हूं f of x1 plus x2, it is f of x1 plus f of x2. अगर मैं कहूंगा f of where x1 x2 both are real numbers, इसको मैं कह सकता हूं x1 plus x2 को x, x3 को y, तो क्या होगा देखो तो f of x plus y, f of x plus f of y, but f of x1 plus x2 को you may write f of x1 plus f of x2 plus f of x3. In fact आप क्या करिए f of x1 plus x2 plus x3 plus x4 ले लीजिए. आप इसको मान लीजिए x और x4 को मान लीजिए y, तो ये हो जाएगा f of x1 plus x2 plus x3 plus f of x4, right? Now see, ये जो f of x1 plus x2 plus x3 है, इसको आप कह सकते हो f of x1 plus f of x2 plus f of x3, because you have already proved from here. ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनल बन जाएगा f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of x4. बात क्या है, जैसे हमने 2 से 3 को प्रूव किया, 3 से 4 टर्म के लिए प्रूव किया, 4 टर्म से 5 के लिए, 5 से 6 के लिए, you shall find like this. If you go on, you can easily prove that f of x1 plus x2 plus x3 dot dot xn is f of x1 plus f of x2 dot dot f of xn, where x1, x2, x3, xn are any n real numbers. अब देखिए, now अब हम लोग we shall go to proof part. हमें प्रूफ करना है f of x equal to x into f of 1, correct, for all x belongs to R. So let us take that x equal to n where n belongs to capital N. मतलब कि अभी मैं बात कर रहा हूं x to be some positive integer n, तो क्या होगा, hence f of n, I may write n as 1 plus 1 plus 1 n times. अगर हम n times 1 ऐड करेंगे तो हमें f of n ही तो मिलेगा. This becomes, but ये x1 x2 f of x1 plus x2 plus x3 dot xn is f of 1 plus f of 1 plus f of 1, how many times, n times. So now f of 1 added n times is n into f of 1, that is, but n is what, n is x, n हमारा x है ना, तो f of, you can say, आप ऐसे भी कह सकते हो आप, f of x equal to f of n, because x और n बराबर, ये आया n into f of 1, but n is x, so x into f of 1. So f of x equal to x into f of 1 for
x when x is any positive integer n or x is any natural number. Part B. Now let x is any negative integer. तो x को नेगेटिव इंटीजर कहने का मैथमेटिकल वे क्या होगा? x इक्वल टू माइनस एम, x इक्वल टू माइनस एम where m belongs to n. Okay, x equal to minus m where m belongs to n. Then क्या होगा? f of x equal to f of minus m. Okay, equal to minus of fm. पहले ये स्टेप को रियलाइज करिए. जब आपने कहा कि x इज एनी नेगेटिव इंटीजर, करेक्ट, x को नेगेटिव इंटीजर कहने का मैथमेटिकल तरीका क्या होगा? x इज माइनस m वेयर m बिलोंग्स टू n, करेक्ट. सो f ऑफ माइनस m इज माइनस ऑफ f ऑफ m बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है f इज एन ऑड फंक्शन. माइनस ऑफ fm को आई एम राइट माइनस तो ऑलरेडी बाहर ही है बिकॉज m इज ए पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है f ऑफ n n इंटू एफ ऑफ 1. ये होगा माइनस बाहर ऑलरेडी है m इंटू एफ ऑफ 1. बट व्हाट इज माइनस m? ये जो माइनस m यहाँ पर है यही तो हमारा x है, तो x इंटू एफ ऑफ 1, करेक्ट. हेंस the statement that f of x equal to x into f of 1 is true when x is any negative integer also, correct. अब देखिए, now let us go for part C. Let x equal to p by q where p and q both are both are positive integers and q not equal to 0. I mean p belongs to I plus and q belongs to I plus. P and q both are positive integers and q not equal to 0. Hence f of x equal to x into f of p by x of f of p by q, and इस p by q को मैं राइट 1 by q plus 1 by q p times. जैसे if I say 7 by 3 तो क्या कहोगे आप? 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, 7 times. Now f of x1 plus x2 plus x3 तो क्या होगा? ये f of x1 p times, this is p into f of 1 by q, p into f of 1 by q. Now ये जो p इंटू एफ ऑफ 1 बाई क्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ p बाई क्यू इंटू क्यू टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई क्यू. हमने यहाँ q डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, और q इंटू एफ ऑफ 1 बाई क्यू इज नथिंग बट एफ ऑफ 1 बाई क्यू added q times. देखो तो q into f of 1 by q, I will write f of 1 by q added q times. This is p by q whole into f of, अब f of x1 plus f of x2 plus f of x3 को आप रिवर्स लिख सकते हो f of x1 plus x2 देखो तो हमारा ये है ना इक्वालिटी. आप अपना इक्वालिटी देखिए,
f of x1 plus x2 डॉट डॉट xn, ये हमने प्रूफ किया था। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो और इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, रिवर्स लिख सकते हो। हमने इसको उल्टा ऐसे लिखा यहाँ पर, ठीक है ना। अब 1/q एडेड q टाइम्स क्या होगा, q इंटू 1/q, दैट इज यहाँ से हम आते हैं यहाँ पर, दिस बिकम्स p/q f of 1/q added q times is q into 1/q, that is p/q f of 1, p/q f of 1. But what is p/q? x है ना, it is x into f of 1, right? So what do we get now? F of x equal to x into f of 1 whenever x is any positive rational number. अब देखिए, अगर ये स्टेप आपको समझ में आया अच्छी तरह, बहुत सिंपल प्रूफ है, कोई खास बात नहीं है, बट इसको एक बार समझने की कोशिश करिए, करेक्ट। अब देखिए, इन केस अगर पार्ट डी में इफ वी गेट if x equal to minus p/q where p/q greater than 0, q not equal 0, p and q both are integers, means x minus p/q where p and q both are positive integers, correct। तो मीन्स हमने कहा x is minus p/q, आप इसको जैसे आपने प्रूव किया था माइनस m के लिए, आप इसको वैसे ही प्रूव कर सकते हो, माइनस ऑफ f ऑफ p/q बिकॉज f इज ऑड, p/q ना पॉजिटिव इंटीजर, तो p माइनस ऑलरेडी बाहर ही है, p/q f ऑफ 1, बट माइनस ऑफ p/q इज x, तो ये x इंटू f ऑफ 1। देखिए, ये क्वेश्चन भले आपको देखने में लग रहा हो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा चल रहा है, पर ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट मैटर ऑफ वन क्वेश्चन। अभी हम लोग थ्योरी का डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये जो कंसेप्ट है ये आगे बढ़कर आपको बहुत से प्रॉब्लम में हेल्प करेगा आपको। इस क्वेश्चन क्या है कि माइंड का हराइजन को अगेन ब्रॉडन करता है। आप इस एक क्वेश्चन में बहुत से बातें आप लर्न कर रहे हो धीरे धीरे, कि हम कैसे प्रूव कर रहे हैं p/q के लिए, फिर माइनस p/q के लिए, एंड सो ऑन। इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो स्टडीज आर ऑल अबाउट ब्रॉडनिंग आवर हराइजन, आवर थॉट प्रोसेस, है ना। तभी एग्जाम हॉल में यू आर मोर कॉन्फिडेंट। एग्जाम में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूरी नहीं, इट नॉट नेसेसरी, बट एग्जाम हॉल में आप इन कंसेप्ट्स को, इन आइडियाज़ को कई बार अप्लाई करने के लिए मजबूर होंगे आप। तो अभी से आप इनको समझ लीजिए कि हाँ कैसे कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, नाउ पार्ट इज when x is irrational, when x is irrational। देखिए, अगर x irrational नंबर है तो क्या होगा, क्या हो, देखिए, when x is irrational, अभी तक आपने जो प्रूफ किया यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो आपने सिंपल कर लिया आपने। बिफोर गोइंग अहेड, मैं आपको यहाँ पर 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1 क्या है, देखिए, नंबर 1, जैसे आप कहते हो कि x रैशनल है, हर एक रैशनल नंबर को यू राइट एज p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। इफ x इज इरेशनल, तुम कहते हैं x इक्वल टू p1/q1 प्लस p2/q2 प्लस p3/q3 एंड सो ऑन pn/qn, where n approaches infinite, n approaches infinite। ध्यान रखिए आप,
इरेशनल, हम कहते हैं एवरी इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। हर इरेशनल नंबर को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल का सम एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। इसका क्या प्रूफ है? देखो, यू लेट अस टेक एनी इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल √2 इज 1.414, आगे भी कुछ नंबर्स होंगे, कुछ भी नंबर होंगे मान लीजिए, है ना, एंड दिस गोज टिल इनफाइनाइट। ये नॉन रिकरिंग मीन्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक साइकिल बन गया, वो साइकिल बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि 1.414 फिर 414 फिर 414, लाइक दिस इट गोज टू इनफाइनाइट। ऐसा कभी नहीं होगा। इनफैक्ट कोई ऐसा साइकिल नहीं बनेगा, ये ऐसे आर्बिट्ररली 4 1 4 2 3 5 9 कुछ चल गो लाइक दिस। तो बात क्या है, आप इसको कह सकते हैं 1 प्लस 0.4 प्लस 0.01 प्लस 0.004, दिस इज 1, 4/10, 1/100, 4/1000 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। करेक्ट? तो ये हो गया रैशनल नंबर, P1/Q1, P2/Q2, P3/Q3, P4/Q4। बात यहाँ √2 का नहीं है। आप कोई भी लीजिए, यू टेक एनी रैशनल नंबर, सॉरी एनी इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर को आप हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स। करेक्ट? दूसरी बात क्या देखिए, दूसरी बात क्या है, लिमिट का एक प्रिंसिपल है, लिमिट का एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है अगर लिमिट x अप्रोचेस a, f ऑफ सम gx है, तो इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस a gx। मीन्स अगर लिमिट ऐसे किसी f का बाहर अगर है, आप उस लिमिट को f का अंदर कैरी कर सकते हैं लाइक दिस, प्रोवाइडेड ये जो gx का लिमिट आएगा, इस लिमिट को अगर l मान लिया जाए, उस l पर f मस्ट बी कंटिन्यूअस। करेक्ट? आपने लिमिट को अंदर ले लिया, ले जाने का बाद जो आपका gx का लिमिट आएगा, इफ इट इज l, उस l पर f मस्ट बी कंटिन्यूअस। करेक्ट? अगर ऐसा है तो आप लिमिट को f का बाहर से अंदर और f का अंदर है तो बाहर ला सकते हैं, मतलब कि देयर इज इक्वलिटी साइन, ऐसा अंदर है तो बाहर भी ला सकते हो आप। करेक्ट? तो क्या देखो, इस क्वेश्चन में जो आपको इनिशियली जो दिया था इंफॉर्मेशन, उसमें ये नहीं कहा था कि f इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्या कहा था? f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इस क्वेश्चन में जो दिया है f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, आप उसको अब उसको यूज करने जा रहे हैं। आप क्या यूज करने जा रहे हैं? देखिए, अगर हमने कहा नाउ x इज इरेशनल, तो हम कहेंगे हेंस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ लिमिट n approaches infinite P1/Q1 Pn/Qn। यही तो होगा, f का अंदर some another function in n, है ना। तो अब ये लिमिट यहां पर है, इस लिमिट को क्या मैं बाहर ले सकता हूं? आंसर इज यस। क्यों यस? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब कि ये जो आपका समेशन है, इसका लिमिट व्हेन n अप्रोचेस इनफाइनाइट,
लिमिट का डिटेल डिस्कशन हम लोग लिमिट चैप्टर में करेंगे, कंटिन्यूटी का डिस्कशन उसका नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम लोग। बट फॉर द टाइम बिंग ये जो लिमिट आएगा, ये चाहे √2 आए, चाहे पाई आए, चाहे ई आए, चाहे √3 आए, जितने इरेशनल नंबर से उनमें से कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पर आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ √2 आएगा तब भी f √2 पर कंटिन्यूअस है, √3 आएगा तब भी f √3 पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि f इज कंटिन्यूअस इन r। तो रियल नंबर में जो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो √2 √3 बीइंग रियल नंबर्स, तो वहाँ भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा, क्योंकि f कंटिन्यूअस है तो हम इस लिमिट को बाहर ले आएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में f का कंटिन्यूटी के बारे में नहीं दिया होता तो हम लोग फिर इस लिमिट को बाहर नहीं ला सकते थे हम लोग। नाउ सी n अप्रोचेस इनफाइनाइट, ये f ऑफ x1 प्लस x2 एंड सो ऑन, तो f ऑफ p1 बाई q1, p2 बाई q2 एंड सो ऑन, pn बाई qn। करेक्ट। अब देखिए यहां पहुंचने के बाद p1 बाई q1 रैशनल नंबर, p2 बाई q2 रैशनल नंबर, pn बाई qn भी रैशनल नंबर, एंड आवर थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। ऑलरेडी हम लोग प्रूफ किए हुए हैं। तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट limit n approaches infinite, now this summation is nothing but x, है ना, इसी को तो आपने x कहा था ना। तो x इंटू f ऑफ 1 इवन इफ x इज एनी irrational number। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट f of x इक्वल टू x इंटू f of 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में अगर f का कंटिन्यूटी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम ये स्टेटमेंट को तब भी प्रूव कर सकते थे, बट टिल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल्स, x बिलोंग्स टू q। अगर आपको x बिलोंग्स टू r के लिए प्रूव करना है तो f का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, करेक्ट। अब देखिए ये जो f ऑफ 1 है ये क्या है, ये सम कांस्टेंट क्वांटिटी, यू कैन से f of x इज सम kx। f of 1 कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, करेक्ट। इन फैक्ट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से y इक्वल टू kx। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप k। इसका स्लोप y इक्वल mx फॉर्म में है, m की जगह k यहाँ आ गया, एक स्ट्रेट लाइन है। और फर्दर हमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में कुछ इन पर बेस करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस लेंगे हम लोग। बट अभी आप फिलहाल इतना दिमाग में रखिए, हाँ ऐसा हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको करने का दौरान जितने सारी चीज़ें लर्न किया आपने उनको ही माइंड में रखिएगा, हाउ यू डिड द प्रूफ। देखिए नाउ सी जैसे आपने इसको प्रूफ किया, सिमिलरली
हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, इफ एफ ऑफ x plus y is f of x into f of y for all real x and y, for all x comma y belongs to R, then f of x equal to f of 1 whole power x, that is f of x is a power x, sum a power x. देखिए अगेन, जैसे अभी आपने प्रूफ किया पिछला पार्ट में, ये सब कुछ बिल्कुल फंडामेंटल फंक्शंस का प्रॉपर्टीज होते हैं, तो आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा. अभी हमने जो किया, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिंपलेस्ट टाइप स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं. ये भी क्या देखो, ए पावर एक्स दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये होता है बिहेवियर. आप इसको विदाउट प्रूफ आप ये समझ सकते हैं टू गेट एन इनसाइट. एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इफ आई टेक ए पावर एक्स प्लस वाई, अगर एफ एक्स को ए पावर एक्स मान लिया जाए, अगर अभी रिवर्स मानना हो एक बार, सपोज एफ एक्स ए पावर एक्स है, एज्यूम कर लीजिए एक बार, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, ए पावर एक्स प्लस वाई. दिस इज ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई, बट ए पावर एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. देखो तो, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई. बात क्या है, अगर एफ एक्स ए पावर एक्स है तब तो ये है, बट द क्वेश्चन इज रिवर्स नाउ. अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो क्या एफ एक्स बस ए पावर एक्स ही होगा या कुछ और भी हो सकता है. हियर ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, द कंक्लूजन इज द ओनली ऑप्शन इज एफ एक्स इज एफ ऑफ 1 पावर एक्स, यानी सम ए पावर एक्स फॉर्म में चला जाएगा. देखो, इसको प्रूफ करने से पहले, जैसे आपने पिछला पार्ट में किया था, अगर आप यहाँ पर x को 0, y को 0 रखेंगे, इंटू यहाँ पर है, वी गेट f0 माइनस एफ स्क्वायर 0 इक्वल टू 0. ओके, और इस क्वेश्चन में या इस स्टेटमेंट में ये दिया गया है, ये जो लिखा वैसे दिया गया, क्वेश्चन दिया गया इसमें, वेयर f इज ए नॉन जीरो फंक्शन, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 0, ये केस रूल्ड आउट है. मीन्स एफ एक्स 0 नहीं है, करेक्ट. ऐसे में एफ एक्स 0 फॉर ऑल एक्स, तो असल में 0 एक ऐसा फंक्शन है, उसमें हो सकता है कि ये कांस्टेंट भी है, 0 भी है, बहुत सी चीज़ें इसके होल्ड कर जाते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि एफ एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो दिया गया स्टेटमेंट, इसमें कहा गया वेयर एफ इज ए नॉन जीरो फंक्शन, ये मेंशन किया गया ऑलरेडी. यहाँ से देखो, अगर आप एफ ऑफ 0 कॉमन लोगे तो बचेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स 0 मीन्स क्या होगा, या तो ये 0 या तो ये 0. दिस इंप्लाइज आइदर f0 इक्वल टू 0 और f0 इक्वल टू 1. Hence f0 इक्वल टू 0 और f0 इक्वल टू 1, करेक्ट. तो f0 इज 0 और f0 इज 1, तो क्या देखो होगा, अगर लेट अस एज्यूम लेट f0 इज 0,
अगर हम f0 को 0 मानते हैं तो क्या होगा, देन हमारा स्टेटमेंट क्या है, f ऑफ x प्लस वाई इज f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं, ये आएगा, दैट इज f ऑफ x। f ऑफ 0 क्या है, 0 आपने एज्यूम किया है तो ये होगा 0 इंटू एफ एक्स। 0 इन एनीथिंग 0 हो जाएगा, हेंस f ऑफ x बिकम 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर हमने f0 को 0 माना, दैट लीड्स टू कंक्लूजन f ऑफ 0 इज 0, हेंस f0 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा फिर, अगर दो ही ऑप्शन हमारे सामने है और f0 0 नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा कि f0 कुछ भी नहीं है, कुछ तो होना ही होना है। तो क्या कहोगे आप, दिस इंप्लाइज f0 इज 1। अगर आप यहाँ f0 को 0 की जगह 1 पुट किए होते, यहाँ 0 की जगह 1 होता, तो आप क्या मिलेगा आपको, f of x equal to f of x. There is no contradiction in that. But fx equal to 0 for all x contradicts the initial statement that fx is non-zero statement, a non-zero function. So f0 is 1. Now once we get f0 is 1, तो क्या देखो होगा, let us find जो f of also इसमें अगर मैं y को रखता हूं -x, f of 0 is what, 1, f of 0 is 1, it is f of x and f of -x. This implies f of -x is 1 by fx. f of -x is 1 by fx. तो क्या मिला आपने को, हाउ डू कंक्लूड नाउ, कि जो हमारा fx है, ओके, जैसे आपने पिछला पार्ट में कंक्लूजन किया, f of -x is -fx, fx is odd function, here f of -x is 1 by fx. so ये आपका देखो, जो a पावर x के लिए देखोगे आपकी a पावर -x इज 1 बाई a पावर x, इस स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई कर रहा है इनफैक्ट। पर है कि एनी हाउ ये तो हम लोग को पता है, इसलिए हम फाइंड कर लिख रहे हैं हम लोग, बट यू शुड अंडरस्टैंड f ऑफ -x 1 बाई fx यहाँ आना चाहिए था, आ भी गया। नाउ अब हम लोग प्रूफ में मूव करेंगे, हम लोग ये पार्ट 2 में आ जाएगा। पहला पार्ट में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया हम लोगों ने, पार्ट 2 में, अच्छा बिफोर गोइंग अहेड वन मोर थिंग, आप इसमें f ऑफ x1 प्लस x2 लोगे, इट इज f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, आप x1 प्लस x2 को x मान लीजिए, x3 को y मान लीजिए, बट f ऑफ x1 प्लस x2 इज yeah, ठीक है ना। इफ यू गो ऑन लाइक दिस, शैल फाइंड फॉर n टर्म्स, तो इस शैल फाइंड इट इज f ऑफ x1 ऐसा। यहाँ जो समेशन पिछले पार्ट में क्या था, आपको दिया था 2 टर्म के लिए, वहां पर प्लस में था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट में है, तो f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस fxn प्लस xn इज f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ xn, प्रोडक्ट में प्रूफ हो गया। पिछला पार्ट का भी सिमिलर प्रूफ है, इसीलिए आई एम नॉट मच डिटेल्स, खाली देखो मैं इसमें एक पार्ट कर रहा हूँ, बाकी पार्ट आप लोग, आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें भी ये प्रूफ दिया गया है, जस्ट आप लोग गो थ्रू करिएगा। अब देखो, जैसे हमने कहा पार्ट 2 का पार्ट ए,
let x is positive integer, hence f of x equal to f of n equal to f of 1 plus 1 plus 1 n times, that is f1 into f1 till n times f of 1 power n, it is f of 1 power x, correct? F of x equal to f of 1 power x. Now if I take, let x equal to minus n, okay, और माइनस m कह लीजिए आप, माइनस m where m belongs to I plus, यहाँ पर n belongs to I plus, मीन्स ये केस था x is positive integer, ये केस हो गया x is negative integer. If I take f of x, it is f of minus m, it is f of minus m मीन्स क्या हो गया 1 by f of m. इट इज नॉट ऑड फंक्शन, जो अभी प्रूव किया था आपने अभी ना, 1 अपॉन बट f of m is f of 1 power m because m is a positive integer. This is f of 1 power minus m, that is a power x, or sorry f of 1 power x. Hence x नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ये ट्रू है. जैसे मैंने दो पार्ट किया, अब आप खुद कोशिश करिए एक्स पी बाई क्यू के लिए क्या होगा, माइनस पी बाई क्यू के लिए क्या होगा, एक्स इरेशनल के लिए क्या होगा. आप एक बार खुद कोशिश करिए, बिकॉज ये आपका स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, लास्ट में देखिएगा आप लोग प्रूफ दिया हुआ है. आपने इससे पहले भी एक पार्ट किया आपने ऑलरेडी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई वाला पार्ट, इसलिए इसको मैं फर्दर नहीं कर रहा हूँ, बट यू गॉट एन इनसाइट कैसे हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे हम लोग. आप लास्ट में पूरा प्रूफ करिएगा टिल एक्स इज इरेशनल. ओके, तो हम लोग आज का क्लास को ही फिनिश करते हैं. थैंक यू, टेक केयर.